حالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر دریا پر بنائے گئے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، پانی کا تیز ریلا مقامی آبادی میں بہہ نکلا، درجنوں ایکڑ پہ کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، گھروں میں پانی، مویشی بھی ڈوب گئے، کسانوں نے حفاظتی بند مضبوط نہ بنانے کا شکوہ کر دیا، ریسکیو اور محکمہ آبپاشی الرٹ ہیں، نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے لوگوں کو جلد محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مونسون بارشیں چیڈیوٹ میں بھی سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا، انتظامیہ نے دریا کے پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا، ملحقہ آبادیوں میں سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں کاشت، مکئی، دھان، باجرہ، کدو، کریلا، بینگن اور دیگر فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ جھنگ میں سیلاب کا خدشہ، حفاظتی بند کی حالت بہتر نہ بنائی جا سکی، رابطہ پل بھی خوف کی علامت، کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ، عوام کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، انتظامیہ سے رابطہ پل کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبہ ٹیکسنگ میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو کی مشقیں، ریسکیو کے جوانوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے، سیلاب سے بچاؤ کے عمل کا مظاہرہ کیا۔ کی کمی کا شکار فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کمائی کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، شہریوں پر یوزر فیس لگانے کا فیصلہ، 15 روپے فی مرلہ ماہانہ وصول کیے جائیں گے، پنجاب حکومت سے منظوری کی اجازت مانگ لی، فیس کے لیے جوائنٹ وینچر یا بل کی صورت میں لینے پر غور۔ مرمتی کام کے نام پر گھنٹوں بجلی بند رکھنے کا نوٹس، 132 kV گرڈ اور 11 kV تار پر انتہائی کم شٹ ڈاؤن کرے، ایک روز پہلے بذریعہ SMS، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا عوام کو اطلاع دیں، پیپکو نے تقسیم کار کمپنیوں کو مراسلہ بھیج دیا۔ کورونا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا اطلاع، عید قربہ کے لیے مویشی منڈیاں شہری حدود میں نہیں لگیں گی، شہریوں کو اسکریننگ کے بعد داخلے کی اجازت ہوگی، فیس ماسک اور سماجی فاصلہ لازم، اوقات کار صبح 6 سے شام 7 بجے تک رکھنے کی تجویز زیر غور۔ ٹیکس ریفنڈز میں اعتراضات اور منظوری میں تاخیر کی وجہ سامنے آ گئی، انکم ٹیکس دفاتر اور ٹیکس دہندگان کی فراہم کردہ معلومات میں تضاد، بینک اکاؤنٹ نمبر اور دیگر تفصیلات یکساں نہ ہونے پر سینکڑوں ریفنڈز کی منظوری نہ ہو سکی۔ بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے مقامی انڈسٹری مالکان پریشان، بجلی کے بلوں پر لوکل انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ کیا جائے، چیئرمین پاور لوم اونر وحید خالق رامے کا حکومت سے مطالبہ، بولے انڈسٹری بند اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ روزگار کے لیے کاروبار کا چلنا ضروری ہے، شو رومز کا وقت بڑھایا جائے، آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا مطالبہ، صدر رانا محمد نوید نے SOPs کے تحت پورا ہفتہ کاروبار کرنے کی اجازت مانگ لی۔ فیصل آباد کی صنعتوں کے لیے خوشخبری، بند یونٹس بحال کیے جائیں گے، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی جانب سے خصوصی کمیٹی تشکیل، چیمبر آف کامرس کے صدر رانا سکندر اعظم نے اقدام کو خوب سراہا۔ زوال پذیر سینما انڈسٹری کے لیے اچھی خبر، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے رواں سال سینما مالکان کو انٹرٹینمنٹ ٹیکس سے چھوٹ دے دی، ٹیکس ریلیف کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں مارکیز اور شادی ہالز کی بندش ختم نہ ہو سکی، مالکان کی اپنے حق کے لیے آواز بلند، لاہور میں احتجاج کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا دیا جا سکتا ہے، جنرل سیکرٹری ملک نواز کا اعلان۔ دربار سلطان باہو، دربار ہیر ناہی آثار قدیمہ پر توجہ، محکمہ سیاحت نے ضلع جھنگ کو نظر انداز کر دیا، وزیر سیاحت تیمور بھٹی کا تھل، ڈیزرٹ ریس اور ٹورسٹ ریزورٹ کا منصوبہ صرف زبانی نکلا، رواں مالی سال پروجیکٹ کے لیے 1 پائی مختص نہ کی گئی۔ توبہ چک 349 کے بنیادی مرکز صحت کے کوارٹرز خستہ حال، عرصہ گزر گیا لیکن دیکھ بھال کے لیے کوئی انتظامات نہ کیے گئے، کوارٹرز کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی میں
में डॉक्टर्स मौजूद, मशीनरी ना मिली। अस्पताल एक्सरे और डेंटल यूनिट से दीगर मशीनरी से महरूम। अमराज कल्ब, आंखों और दांतों के मरीज दूसरे अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर। DHQ अस्पताल चनियोट की इंतजामिया मरीजों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर ही नायाब। डायबिटीज के मरीज इलाज के लिए दर-बदर। देही मरकज़े सेहत मकवाना में आग बुझाने वाले आलात ज़ायदुल मियाद हो गए। इंतजामिया की मुबैना गफलत, 2 माह बाद भी सिलेंडर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। आती जदगी पर आग बुझाना मुश्किल हो सकता है। मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ात। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में शेल्टर होम बना दिया गया। मुखय्यन हजरात और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इफ्तिताह किया गया। 200 से 300 अफराद के बैठने की गुंजाइश, पंखे और एयर कूलर लग गए। MS डॉक्टर हबीब गुटर का सहूलियात फराहम करने का दावा। महकमा सेहत फैसलाबाद का बच्चों को मोजी अमराज से बचाने का अज़्म। जड़ावाला के इलाके मकवाना में 2 रोज क्रैश मुहिम शुरू कर दी गई। 8000 बच्चों का हदफ। टीमें घर घर जाकर हिफाजती इंजेक्शन लगाएंगी। पंजाब के जिला झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम न हो सकी। मंसूबे के लिए मुख्तस 117 एकड़ अराजी कूड़ा स्टैंड बन गई। शहर भर का कचरा इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह पे फेंका जाने लगा। कूड़ा करकट के ढेर से अहले इलाका परेशान। इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का मुतालबा। भवाना का जामियाबाद गंदगी और गंदे पानी के मसाइल का शिकार। गलियां बाजार बाढ़े में तब्दील। मच्छरों की बहुतात बीमारियों को दावत। कमालिया की जिशान कॉलोनी में भी जगह जगह गंदगी के ढेर। बदबू से सांस लेना मुहाल। वकील सफाई सुथराई न होने पर नाला। 23 करोड़ रुपए लग गए। चनियोट में सीवरेज मसाइल हल न हो सके। इफ्तिताह के चंद दिन बाद ही नई तामीर सीवरेज पाइपलाइन फट गई। खेत में पानी आने से फसल तबाह। किसान की मेहनत जाया हो गई। गोजराचक 283 की मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। देहाती नाली सोलिंग न होने के बायस ज़हनी अजियत में मुब्तला। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत भी काम न आई। मकीन मुंतखब नुमाइंदों से नाला। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली का जड़ावाला की आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज नाले की तामीर जारी। 2 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर सीवरेज नाले का तामीराती काम मुकम्मल होगा। नए बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त। हल्का बंदियों का मसला हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर फोकल पर्सन नामजद। विलेज और नेबरहुड काउंसिल की हल्का बंदियां होगी। कागजात और नक्शेजात के मसाइल हल किए जाएंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्त भी मरकजी केस के साथ मुंसलिक करने की हिदायत की गई। फैसलाबाद के 2 असिस्टेंट कमिश्नर कटहरे में AC सदर उमर मकबूल ने 50 से 60 हजार बोरी चावल जब्त किए। रिकॉर्ड मुरतब न किया। AC सिटी अयूब बुखारी गोदाम डीसील करने पर कानून की जद में आ गए। अदालत ने मामला संगीन करार दे दिया। DG एंटी करप्शन पंजाब को इंक्वायरी का हुक्म। फैसलाबाद पुलिस का मुअत्तल एहलकार बेहतर कारकर्दगी का हकदार बन गया। सिटी 41 ने मुबैना रिश्वतखोरी की फुटेज चलाई। CPO ने मुअत्तल कर दिया। पुलिस ढूंढती रह गई। हेड कांस्टेबल उर्फ बिल्ला इनाम लेके चला भी गया। मुझ पर FIR क्यों दर्ज कराई? फैसलाबाद का कांस्टेबल गुस्से में आ गया। बीच सड़क दूसरे कांस्टेबल पर पिस्टल तान ली। हॉकी के वार से जख्मी कर दिया। पुरानी रंजिश पर बावर्दी पुलिस मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। सिर्फ 400 रुपए जुमरा में डाकू मुस्तैल हो गए। लोडो रिक्शा ड्राइवर को बरहना करके कपड़े साथ ले गए। इंसानियत की तस्दीक पर पुलिस खामोश। मुकदमा दर्ज करने से भी गुरेजा।
फैसलाबाद के दुकानदार होशियार खबरदार। वारिसपुरा बटाला कॉलोनी की मोबाइल शॉप में डकैती। डाकू गाहक बन के आया, मोबाइल पसंद किए, काउंटर पर रखवाए, पिस्टल निकला और फिर गन पॉइंट पे सब बैग में डाला और चलता बना। टिक टॉक पर शोहरत का जुनून नौजवान को सुलाखों के पीछे ले गया। अलियाबाद जंग के रिहायशी की असलिया के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज। एक्सपीएन गुलाम मोहम्मदाबाद अमीर खान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। जुलाई के पहले 10 दिनों में 15 बिजली चोर धर लिए। 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। सन्योट में डीएसक्यू डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से फेस्को एहलकार की मौत का मामला। सीबीए वापडा यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का डॉक्टर को बर्खास्त न करने पर हड़ताल का ऐलान। फैसलाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,230 हो गई। 4,587 अफराद के वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए। तिब्बी माहिरीन की अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने और SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। अहमदपुर सियाल में महकमे सेहत की गफलत सामने आ गई। कोरोना सैंपलिंग टीम को दी जाने वाली गाड़ी नाकारा निकली। टीम की गाड़ी धक्का स्टार्ट, सैंपलिंग करने में मुश्किलात। स्कूल खुलेंगे, बच्चे आएंगे, मगर बैठेंगे कहाँ? फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में समाजी फासला मुश्किल। मज़ीद 10,000 क्लासरूम तामीर करने की जरूरत। इंतजामिया और महकमे तालीम के लिए SOPs पर अमल दरामद इम्तिहान बन गया। तलबा को क्लासरूम्स के बाहर बिठाने पर गौर। तेज धूप और बारिश में क्या बनेगा? बड़ा सवाल, मगर जवाब कोई नहीं। CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान का स्कूल्स में सफाई का जायजा। नाकिस इंतजामात पर LCM हाई स्कूल समुद्री रोड के सरबराह की सरजनिश। इलामा इकबाल कॉलोनी, बाबर चौक और इकबाल नगर के स्कूल्स में सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। यौम शहदाए कश्मीर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का जंग में एहतजाज। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से कश्मीर में जारी बर्बरियत और जुल्म रुकवाने की अपील। तहरीक इंसाफ वुमेन विंग फैसलाबाद की जिलाई सतह पर तंजीम साजी न हो सकी। PTI रहनुमाओं को ओहदा मिलने का इंतजार। काम करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, कारकुन पुरुमीद। चेयरमैन बैतुल माल फैसलाबाद मलिक आसम की जेर क़यादत इजलास। रोके हुए फंड्स को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाने का अज़्म। मेंबरान को माली इमदाद देने का अमल तेज करने की हिदायत की। फैसलाबाद दीवान सनत और तिजारत में एग्जेक्टिव कमेटी का अहम इजलास। राना सिकंदर आजम ने सदारत की। नायब सदर बिलाल वहीद, सीनियर नायब सदर साकिब मजीद की भी शिरकत। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट, चैम्बर इलेक्शन और मेंबर साजी पर तबादला ख्याल। गुजरा में स्पोर्ट्स शॉप मालिकान खेलों पर पाबंदी से परेशान। कारोबार में मंदा है, कुछ भी नहीं बिक रहा। दुकानदारों का शिकवा। SOPs के तहत खेल बहाल करने की अपील। शोरकोट के खिलाड़ियों का खेलों के मैदान बनाने का मुतालबा। और खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता ना हो, अपनी फिटनेस पर पूरी तवज्जो दें। लॉकडाउन खुलते ही पूरे जज्बे के साथ मैदान में उतरे। कौमी कबड्डी टीम के कप्तान इरफान उर्फ माना पुरअज़्म खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया।